I'm Tanmay Kale. I have secured rank 230 in UPSC CSE 2021. I belong to Ujjain, where I did my schooling from Kendriya Vidyalaya Ujjain. After that, I pursued my graduation in chemical engineering from Ujjain Engineering College itself, which is also in Ujjain. After that, I started my preparation for the civil service examination, and this was overall my third attempt and first mains and first interview, and I got the desired rank which I was aspiring for from a long time. So this was some brief introduction. Here I would also like to tell you guys that I come from very humble background. I haven't attended any esteemed institution for my graduation. It was a regional college, uh, government regional college. So it is to tell you guys that आप कोई से भी background से आते हो, it doesn't matter. Anyone can crack UPSC. Yeah. So first of all, my UPSC journey. Uh, Technically, my journey started in 2019 when I went to Delhi to attend the coaching for optional subject. But I was aspiring for UPSC from a long time, from the fourth year of my college, but I wasn't very serious to be honest. In the fourth year, I was involved with many other things in the college and also participated in the placement drive. So I would say that my journey started from mid 2019 uh, when I started a dedicated preparation. So yes, that was some non-serious phase in the fourth year of my college. After that, when I went to Delhi, some kind of hardcore preparation I started, and I gave the 2019 attempt without any preparation. So definitely I didn't clear it. And after 1 year of preparation, I gave the 2020 attempt. And due to the first wave of COVID, I got plenty of time to study for the prelims exam. But in 2020 itself, I wasn't very much prepared for the mains also. And due to some mistakes in CSAT, because I took CSAT lightly, uh, I wasn't able to clear the CSAT cutoff. I was able to clear the GS cutoff, but CSAT cutoff I wasn't able to clear. That's why 2020 attempt I couldn't able to make it to the mains. But in 2021 I decided that if I'm going to clear prelims, then I have to make it to the final list. So I prepared for the whole year, considering mains as the primary motive, and started for the prelims very late because I was well aware of the things which I have to do for clearing the prelims. So I started dedicated preparation for prelims before 2 months of prelims only, and gave mains and then gave interview, and this way my UPSC journey has come to a halt, I can say. Now other thing is that prelims strategy. So here I would like to tell you guys that prelims में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज अगर देखा जाए इस एग्जाम की तो prelims ही है, बिकॉज अगर आप prelims में इन नहीं होते हो तो आप पूरी तरह से आउट हो जाते हो. इसलिए you should take prelims very seriously from the beginning of your preparation. So what I did, first of all, uh, I studied the basic books. Okay, basic books involves. I think all of you know that we have Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history, and the NCRTs. So, in this particular, I would like to add that NCRT is the very much authentic source. I think is the most authentic source of UPSC preparation because it is published by a government agency only, and UPSC can't deny anything which is written in the NCRT. So NCRT is the most basic book which one must cover if he has to study for UPSC as a whole. So in the prelims strategy, first I covered all the static portion, and from the videos of toppers, I got to know the important subjects, which I would also list out here, which is first is polity, second is economy, and third from 2014 onwards, environment. So these three are the main subjects which will help you clear the prelims. So you must focus on these three subjects from day one. So the same thing I also did. I focused on these three subjects. I studied polity from wholly from Lakshmikant. I didn't prefer any other book. I refer one more book for mains, which I'll tell you in the mains section. But for prelims, I only referred Lakshmikant.
Then secondly, economy. I referred Minal sir's notes, Minal sir's handouts. They are very comprehensive. They cover all the portion of economy which is asked in prelims, and it is oriented with UPSC only. Sir covers the dimension which UPSC covers, and also has a brief analysis of previous year papers in his notes. So for economy that, and for environment, I covered PMF IAS booklet is there. I didn't refer Shankar IAS book. I referred PMF IAS booklet. It is written in very simple language. बहुत ही आसान language है, वो कोई भी समझ सकता है. Even a Hindi medium student can understand that English. So you can refer that book for sure. It covers every dimension, everything which has been asked in the previous papers of prelims. So these three main subjects. Apart from that, for history, I referred the new NCRTs, class 6th, 7th, and 8th, that is ancient, medieval, and modern history, new NCRTs, and the class 12th NCRT themes, all the three NCRTs. So for history, I referred this, and spectrum definitely. I covered the spectrum thoroughly, made notes from the spectrum book, and also tried to cover the portion of history from the mock test which I gave before prelims. I'll come to that later. So these are some books which I referred. Then comes geography. I didn't refer any other book than the 11th and 12th NCRT. Uh, the economic geography and physical geography of world and India both. I didn't refer any other book for geography. For map work, what I did, एक मैप मैंने सामने लगा लिया था अपना, वर्ल्ड मैप फिजिकल, उसको देखता रहता था बस. स्टेट्स देख ली, कभी कंट्रीज की बॉर्डर्स देख ली, कौन सी कंट्री जो इम्पोर्टेंट एरिया न्यूज में है, जैसे मिडिल ईस्ट है फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी का, तो वहाँ की जो कंट्रीज है उनकी बॉर्डर्स कौन से सी से टच हो रही है, उसका रिलेटिव डिस्टेंस इक्वेटर से क्या है, ऐसी सब चीजें जब रात को समय मिलता थोड़ा 10 मिनट ये कर लिया. मैप वर्क के लिए केवल मैप देखा है और कुछ नहीं. एटलस, डेफिनेटली एटलस, वी वर्क ऑन एटलस. वो जब प्रीलिम्स पास में आती है जब मैं रेफर करता था. आई विल कम टू दैट. So then comes the subject science and tech. For science and tech, you can refer any magazine which is available in market. So I referred only IS Udan magazine. It covered the science and tech portion comprehensively. It covered all the required subtopics in science and tech. It covered the portion which is given in the biology NCERT textbook of 11th and 12th, and it covered the current affairs. So you can definitely refer the Uran of only IS for science and tech. I think all the subjects are now covered for prelims. Now I will come to the PYQs. So you only have to refer the PYQs after 2014, not before that, because the pattern have changed after 2014, and like recently pattern is changing every year. So I would still suggest that refer the previous year questions from 2014 itself. Then what we have to do is before 2 or 3 months of prelims, you have to start making short notes. Uh, you definitely have made elaborate notes of every subject, so start making short notes because it will help you revise every subject before 10 days or before 15 days of the exam. So first thing is that make compact करो अपने notes को जितना compact कर सकते हो. पर्टिकुलरली मैं एक सब्जेक्ट बताऊं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लिस्ट बना लीजिए आप न्यूज़पेपर की किसने लिखा है. ट्राइबल रिवॉल्ट है, लीडर कौन था, कौन कौन एसोसिएटेड था उससे. फिर पीसेंट मूवमेंट है, कौन कौन एसोसिएटेड था. एक ऐसे एक एक पेज में इसके लिस्ट बना रहे तो 5 या 6 पेज में ऑलमोस्ट आई थिंक सारे उसके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. सेम आप पॉलिटिकली भी कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट एक पेज में पूरा कवर कर लिया. फिर अपना जो नेक्स्ट पोर्शन आता है गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पोर्शन है पूरा, प्रेसिडेंट हो गया उसमें, प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीथिंग, पार्लियामेंट, that you cover in 1 or 2 page. So these kind of compact notes you have to make so that you can revise at the 11th hour. Next thing is that last time revision is very important for prelims, because throughout the preparation of this exam I have realized that one of the most important thing in this exam is the revision. So if you revise thoroughly, you can easily cover all the subjects in the required time and easily clear the cutoff for prelims.
So what you have to do in revision is don't ever try to study any new thing before 2 months of prelims. I personally suggest that, or before 1.5 months or something, because generally UPSC does not ask current affairs uh, just like 1 month before or 2 month before. 2 महीने या 3 महीने पुराने जनरली नहीं पूछता है. आजकल ऐसा है ट्रेंड कि पिछले 1 या 2 साल के करंट अफेयर जनरली वो कवर करता है. सो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह बंद कर दोगे 2 महीने पहले, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हार्म करेंगे वो, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पोर्शन से कवर होते हैं. सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन डूइंग लास्ट टाइम रिविजन. Then comes CSET. CSET, since I come from engineering background, I took CSET very lightly in the 2020 attempt. That's why I couldn't make it. और 1 मार्क से मेरा CSET रह गया था. So first thing is that आप कोई से बैकग्राउंड से आते हो, आपका मैथ्स कितना भी अच्छा हो, CSET को कभी लाइटली नहीं लेना. बिकॉज अगर आपने CSET को लाइटली लिया, तो फिर CSET आपको लाइटली जरूर बिल्कुल नहीं लेगा. बिकॉज CSET जो है पिछले 3 या 4 साल से थोड़ा टफ होते जा रहा है. So what I would suggest that if you come from mathematics background, all you have to do is do some practice. अगर थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो I think you will easily clear the CSAT cutoff. And if you don't come from the mathematics background, I think you should opt for some uh, coaching or some material, because I can't help with that, because I come from mathematics background. I didn't do any coaching for CSAT. Just the thing is that you should not take it lightly. And अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सिंस मेरी मतलब इंग्लिश, आई एम प्रोफिशिएंट विद इंग्लिश, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन. सो मैं उसको टच नहीं करता था जनरली, बिकॉज मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ्स और रीजनिंग का, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा. मतलब आपको जितने मार्क्स लाने हैं, 66 मार्क्स लाने हैं, आप 66 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन से. सो आई थिंक इफ यू आर कंफर्टेबल विद मैथ्स एंड रीजनिंग, देन यू शुड नॉट गो फॉर द passages. Otherwise, you can go for it. Okay, so I think we are done with the prelims portion. Now I will come to the mains. So first, you must be aware of the mains structure, that there are 7 scoring papers and 2 compulsory papers. And I think 4 most important papers in maths is OOEE. That means optional means optional 1 and optional 2. And second, EE means essay and ethics. So first we'll come to essay preparation. So I would like you all know that for essay, you don't have to refer any other book, because essay is covered from the other 6 papers which you prepare for from different sources. So अगर आप ऐसे के लिए कुछ बुक रेफर करेंगे, so I think it would be a waste of time for you. अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप डेफिनेटली ऐसे के लिए कोई बुक रेफर कर सकते हैं. एक चीज जो रेफर करनी चाहिए ऐसे के लिए, वो है कि आप एक गूगल करेंगे या फिर कोई से यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको जो यूपीएससी प्रिपरेशन कराता हो, या कोई सा भी कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे 100-150 कोट्स मिल जाएंगे थिंकर्स के, अदर लीडर्स के. तो वो लीडर्स के कोट्स जरूर आप याद कर सकते हैं. आई थिंक वो 1 महीने में आपको अच्छे से याद हो जाए कि आप वो ऐसे में ड्रॉप कर सकते हो. तो वो मैंने किया था. ऐसे में कोट्स याद करके गया था मैं बहुत सारे, जहां जहां मैं यूज कर सकता था किया. तो फर्स्ट थिंग ऐसे प्रिपरेशन में ये. सेकेंड है आपको फ्रेमवर्क. आप किसी टॉपर की आंसर कॉपी जो है बहुत सारी कोचिंग्स की अवेलेबल है, तो वो रिफर कर सकते हैं फ्रेमवर्क के लिए. या फिर एक जनरल जो फ्रेमवर्क होता है, जो अपन जीएस के सब्जेक्ट में जैसे पढ़ते हैं, जीएस के एक सब्जेक्ट की लिस्ट अपने पास रहती है कि हाँ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, और एक जो डायमेंशन में ऐड करा करता था वो थी सबाल्टन. सबाल्टन डायमेंशन वो होती है विच आर द इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ अ लैंड. सो कोई से भी ऐसे में अगर होता था, तो मैं कोशिश करता था कि एक सबाल्टन डायमेंशन ऐड करूं. उस ऐसे को, उस टॉपिक जो दिया है पर्टिकुलर, उसको जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स हैं या फिर कोई सबऑर्डिनेटेड सेक्शन है सोसाइटी का, उसके पर्सपेक्टिव से क्या होगा वो ऐड करो. तो आपको ऐसे में जनरली 5 मेजर डायमेंशन कवर करनी रहती है, अगर हो पाती है तो. जनरली फिलोसॉफिकल ऐसे में नहीं हो पाती, आई विल कम टू दैट लेटर. अगर लेकिन हो पाती है, तो वो 5 डायमेंशन आप उसमें ऐड कीजिए और उसको 5 आंसर की तरह लीजिए.
150 से 200 वर्ड के 5 आंसर आपको ऐसे में लिखना है। तो वो करके अगर आप ऐसे की तैयारी करेंगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग ऐसे में है प्रैक्टिस। ऐसे का जो यूपीएससी का पेपर आप लिखने जाएंगे उसके पहले एटलीस्ट 10 ऐसे आपने लिखे होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 4 तो इवेल्युएटेड हो और आपको अपने गलतियां उसमें पता चल जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऐसे में। सेकंड में आऊंगा, सेल्फ मेड स्ट्रक्चर ऐसे में आप यूज कर सकते हैं। कोई स्टोरी जैसे यूज कर सकते हैं। मैं जनरली मेरे साथ होता था कि मेरे को कोई ना कोई स्टोरी रिकॉल हो जाती थी देख के। फॉर एग्जाम्पल, इस साल जो यूपीएससी ने ऐसे पूछा था that philosophy of wantlessness is a utopia, but materialism is a chimera. So since I come from Ujjain and I have attended the Sinhast, so I have seen many sadhus there. So those sadhus were in the wantlessness stage as I perceived it. So I used that story in the essay. So I think that got some extra edge and I scored above average in essay. So these kind of story which from your own life, from your own observation you can use in essay, and that makes a great impact in essay because UPSC wants authenticity. And if you copy some story from some place, then they are 10 step ahead of you. उनको पता होगा कि हाँ ये इसने कहीं से कॉपी करके आया है। दे डेफिनेटली नो कि आप क्या कॉपी कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। हमेशा ये बात हमेशा याद रखना कि यूपीएससी आपसे 10 कदम आगे ही रहता है, लेकिन यूपीएससी को आप ब्लफ कर सकते हो मेंस में, केवल मेंस में। तो ये चीज, दो चीज हमेशा याद रखते चलनी। थर्ड, ऐसे के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसमें आप एथिक्स और ऑप्शनल के पॉइंट्स जरूर जो है इंटरलिंक कर सकते हैं। ऑप्शनल आपका थोड़ा विजिबल होना चाहिए ऐसे में। जैसे सोशियोलॉजी था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिलेक्शन में विजिबल हो जाता है कि आपने कौन सा ऐसे सिलेक्ट किया लिखने के लिए। सो लाइक मैंने रिसर्च वाला ऐसे सिलेक्ट किया था, वो डायरेक्ट कोट था एक सोशियोलॉजिकल थिंकर का। सो इट इज विजिबल टू द इवेल्युएटर ऑल्सो कि हाँ ये इसका डेफिनेटली सोशियोलॉजी बैकग्राउंड होगा मोस्ट प्रोबेबली जब भी इसने ये सिलेक्ट किया है। और सेकेंडली आपके जो थिंकर्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो जनरली ह्यूमैनिटीज में होते हैं, उनका कंटेंट विदाउट नेमिंग देम आप यूज कर सकते हैं ऐसे में। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू शुड रिमेम्बर इन एन ऐसे बिफोर राइटिंग एन ऐसे। और ऐसे के लिए जो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप पहली बार ऐसे लिखना जाए तो सबसे पहले 10 पेज आप ड्रॉ कर लीजिए, छोटे छोटे 10 पेज, बिकॉज 10 पेज का ऐसे आपको वहां पे लिखना ही है, तभी आपके 1000 वर्ड्स कवर हो पाएंगे। सो उन 10 पेज में आप सब हेडिंग्स डाल के आप पहले डिसाइड कर लीजिए लिखना क्या है। बिकॉज हमेशा 1.5 घंटे का टाइम जो ऐसे के लिए मिलता है, आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ताकि आप ऐसे लिखते टाइम रुके नहीं। तो वो 10 पेज आप बनाइए। इंट्रोडक्शन में आप एनिक्डोट कुछ लिखना चाहेंगे या कोट से स्टार्ट करना चाहेंगे, या सिंपली आप ऐसे को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, ऐसे में जो वर्ड्स लिखे हैं उनका उनका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो वो आप जो है वो इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ एक डाल लीजिए कि हाँ ये करूंगा। फिर थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ऐसे में, जिसमें आप बताते हैं कि पूरे ऐसे में अपन बात किस बारे में करने वाले हैं ताकि एग्जामिनर को इंटरेस्ट बने। तो वो कुछ नहीं होता है, एक शॉर्ट समरी प्रीफेस टाइप होता है। जैसे आप कोई मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, जैसे ट्रेलर आता है मूवी का, तो वो ट्रेलर वहां पे आपको लिखना है। तो वो ट्रेलर एक तरीके से थीसिस स्टेटमेंट होता है कि हाँ ये ऐसे में मैं ये बात करने वाला हूँ, ये डायमेंशन कवर करने वाला हूँ। देन यू कैन स्टार्ट विद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड वो आज 10 पेज का एक बना लीजिए, 2-2 पेज में हर डायमेंशन जो कवर हो जाएगी। कंक्लूजन में अगर आपको कुछ कोर्स याद आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो सिंपली उस ऐसे की समरी लिख दीजिए। इट डजेंट मेक वेरी मच डिफरेंस इन द मार्क्स। 1 या 2 मार्क्स का अंतर पड़ेगा आई थिंक, अगर आपने समरी अच्छे से लिखी है उसकी, तो आई थिंक यू विल स्कोर at par with the average marking in essay. Now next I will come to the GS portion. So here I would like to tell you that prelims और मेंस की जो तैयारी होती है जीएस के लिए, वो एक्सक्लूसिव नहीं होती, दोनों साथ में होती है। तो जो अपन बेसिक बुक पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है, वो सारी चीजें मेंस में भी काम आती है डेफिनेटली। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक मैगजीन आप कुछ रिफर कर सकते हैं, जैसे मैंने ओनली आईएएस की प्रहार मैगजीन रिफर की थी, जो वो प्रीलिम्स के बाद निकालते हैं। तो उसमें फायदा क्या होता है कि साल भर के करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छे दिए थे। सेकेंडली कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कवर हो जाती। कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ऐसे में, सॉरी जीएस में, जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया।
तो इसकी छोटी छोटी बुकलेट्स अवेलेबल होती है मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स की, आप वो रिफर कर सकते हैं। प्रहार जैसे मैंने बताया आपको, प्रहार आप डेफिनेटली रिफर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली रिटर्न बुकलेट, सो दैट इज बेस्ट। सेकंड, जो जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट है और स्कोरिंग एरिया है वो है एथिक्स का। तो एथिक्स के लिए, एथिक्स में भी यूपीएससी नीड्स ऑथेंटिसिटी इन एथिक्स। आप ट्राई कीजिए कि एग्जाम्पल आप खुद की लाइफ से दें, खुद के देखे हुए दें। आई थिंक कॉलेज लाइफ सबने कवर की होगी यूपीएससी एग्जाम देने के पहले, तो कॉलेज लाइफ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल मिल सकते हैं। लाइक परसिवरेंस का एक क्वेश्चन आया था इस साल, तो उसका एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल उसमें कोट किया। लाइक ओलंपिक्स आप सबने देखे होंगे, और इस बार इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एंड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की हॉकी टीम परफॉर्म अच्छा कर रही थी, बट दे वर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। सो दिस थिंग, देयर दे शोड द परसिवरेंस, कि वो लगे रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। परसिवरेंस का मतलब ही वो होता है कि आप जो हार्ड वर्क करते हो, जब आप थक जाते हो उसके बाद जो हार्ड वर्क करते हो। So I quote that example in the ethics portion in the perseverance question. So these kind of example you can refer from the daily observation or whatever observation of your friends also. जब आप अपने जो ग्रुप बना होगा कोई स्टडी के लिए, उनसे बात करेंगे तो इस टाइप के ऑब्जर्वेशन आप डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ चीज आपने ऑब्जर्व की है क्या। एक टॉपिक उठा लिया डेली का, वो टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, चलो जैसे पर्टिकुलरली एथिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, प्रोबिटी उठा लिया, तो यार डिस्कस कर लो फ्रेंड से, यार ऐसा कुछ तुमने नोटिस किया क्या कि प्रोबिटी कहीं लैक हुई हो किसी इंस्टीट्यूशन की, या पर्सनली कोई लैक हुई हो। तो दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस विल हेल्प यू इन एथिक्स। एंड सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू केस स्टडी, आप डेफिनेटली रिफर कीजिए कोई सी बेसिक बुक। लाइक लेक्सिकन में केस स्टडीज अच्छी दी हुई है, बट आई वुड सजेस्ट दैट टॉपर्स की कॉपी अगर आप रिफर करते हैं केस स्टडी के लिए, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम, they have cleared the exam with good marks, and it is approved by UPSC. The most important thing with toppers copy is that उनकी मेंस के 1-2 महीने पहले की कॉपी रिफर कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विद कॉपीज इज दैट कि वो अप्रूव की गई है यूपीएससी से, दे आर सिलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट। सो इफ यू रिफर देयर कॉपी, आई थिंक इट इज सम मोर ऑथेंटिक देन अदर बुक्स। सो उनका फ्रेमवर्क रिफर कीजिए आप। जैसे आजकल 3 या 4 क्वेश्चन केस स्टडी में पूछता है, तो जनरली आपको कंटेंट केस स्टडी का मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो बेसिक जो पोर्शन है एथिक्स का, वहां से जो है वो आपको केस स्टडी का कंटेंट इजीली मिल जाएगा। तो उस कंटेंट का इस्तेमाल उसमें कैसे करना है, ये आपको टॉपर्स की कॉपी से इजीली पता चल सकता है। और केस स्टडी में भी लाइक ऐसे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी में है कि प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं, वो मैटर करता है। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट दैट आपने 50 केस स्टडी जरूर सॉल्व की हो, जरूर लिखी हो बिफोर राइटिंग द एथिक्स मेन पेपर इन यूपीएससी, जिसमें से एटलीस्ट 10 इवेल्युएटेड हो और आपको अपनी गलतियों का पता हो। तो केस स्टडी के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग फॉर केस स्टडी इज दैट इफ इफ पॉसिबल ट्राई टू स्टार्ट विद अ कोट। सेम कोटेशंस जो मैंने बताया ऐसे के लिए आप यूज कर सकते हैं, सेम वो एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। कोट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इट मेक्स अ ग्रेट इंप्रेशन, एंड एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसको केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई और इसने कोट में ही बता दिया है कि केस स्टडी में ये क्या बात करने वाला है, पूरी केस स्टडी ये कैसे चलाएगा। बाकी जो 3-4 क्वेश्चन दिए वो तो आप इजीली उसमें आंसर कर सकते हैं, बट अगर कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस and it gets you an edge over other participants, other aspirants. Okay. Now GS 1-3, एक चीज आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया 2020 में, जब प्रीलिम्स नहीं निकला था मेरा, जब से लेके 2 महीने प्रीलिम्स के पहले, मतलब 10 अगस्त 2021 तक मैं डेली आंसर राइटिंग करता था जितना पॉसिबल होगा। ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली डेली, बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव रिटन आई थिंक 500 to 600 आंसर्स इन टोटल। और डेली आंसर राइटिंग चालू की मैंने, एटलीस्ट एक आंसर या 2 आंसर जितना पॉसिबल हुआ करता था मैं लिखा करता था। इनके लिए क्वेश्चन जो है वो आपको 2 चैनल से मिल सकते हैं, जो मैंने 2 चैनल रेफर किए थे। फर्स्ट इज इनसाइट आईएएस, सेकंड इज दृष्टि आईएएस। वो डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस डालते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप रेफर कर सकते हैं।
वो 2 या 3 दिन बाद उसके मॉडल आंसर भी डालते हैं, तो उन मॉडल आंसर को रिफर करके आप इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कीजिए, वहां से क्वेश्चन निकालिए, फिर वो क्वेश्चन लिख के देखिए और टॉपर के आंसर से कंपेयर कीजिए। ये चीज भी उसमें बहुत अच्छी हो सकती है। सो डेली आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उससे आपका कंटेंट एनरिच होगा, उससे आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर आप रोज 2 या 3 क्वेश्चन लिखेंगे, स्पीड में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन रोज लिखेंगे तो आपको कंटेंट को इंटरलिंक करना आएगा हर एक टॉपिक के साथ। कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जैसे आया था डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी पे, इस बार आया था। सो रिसेंटली न्यूज में था कि बहुत सारी ऐसे बिल्स हैं जो स्टैंडिंग कमिटीज को नहीं दिए गए हैं। तो जब आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो ईयर लॉन्ग आपको एक रिकॉल होती रहेगी, ईयर लॉन्ग आपको पता रहेगी चीजें कि कौन कौन सा बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास दिया गया है, कौन सा नहीं दिया गया है। इस टाइप की चीजें जो है वो डेली आंसर राइटिंग से काम आती है। और कोशिश कीजिए कि डेली आंसर राइटिंग में आप सारे टॉपिक्स कवर कीजिए। सॉरी। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसको डेली आंसर राइटिंग में कवर नहीं करते हैं। तो आई थिंक डेली आंसर राइटिंग में ये सारे टॉपिक्स जरूर आपको कवर करने चाहिए, ताकि एक 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 भी टॉपिक आपका फिल्म्स के पहले ऐसा ना हो मेंस का जो कि कवर ना हुआ। सो डेली आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस जीएस 1 2 3। एंड सेकेंडली व्हाट आई वुड से, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में मैप बन सकता है, और इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के हर क्वेश्चन में मैप बन सकता है। आप डिजास्टर प्रोन एरिया जो है वो बता सकते हैं, इंडिया का या वर्ल्ड का। सो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। सो आई थिंक, और सेकेंड एक चीज होती है टेबल्स। टेबल्स बनाने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, टेबल्स जितनी ज्यादा आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। सो मेंस के लिए आई थिंक दीज थिंग्स आर इनफ, रेस्ट आई विल टेक इन द क्वेश्चन। सो देन कम्स ऑप्शनल। सो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने डेडिकेटेड कोचिंग करी थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से। और उसके अलावा भी मैंने कुछ बहुत सारे सोर्सेज रेफर किए थे। अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता दूं, एक हलनम्बस बुक आती है सोशियोलॉजी की, वो आप रेफर कर सकते हैं। सेकेंडली, नितिन सांगवान ऑप्शनल की एक बुक है, उसको आप रेफर कीजिए। थर्ड इज इग्नू के कुछ नोट्स होते हैं जो पेपर 2 में काम आते हैं। मेनली जो सोशल मूवमेंट्स वाला टॉपिक है या फिर लेबर वाला टॉपिक है पेपर 2 में सोशियोलॉजी के, उसमें इग्नू वाले नोट्स बहुत काम आते हैं। और भी कुछ अगर स्मॉल नोट्स, जैसे थिंकर्स है, इग्नू थिंकर्स जो सेकंड पेपर के हैं वो बहुत एक्सटेंसिवली कवर किए हैं, जो थिंकर्स सिलेबस में नहीं दिए गए। सो उस चीज को भी आप इग्नू से रिफर कर सकते हैं। फोर्थली, मैंने स्लीपी क्लासेस का जो सोशियोलॉजी का कंटेंट है वो भी रेफर किया था। दैट इज वेरी गुड कंटेंट, तो उसको आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। उसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे एग्जाम के मतलब जो 5 दिन का गैप होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उसमें मैंने उन वीडियोस को फिर से देखा, रिवाइज बार बार देखा, तो वो चीजें कुछ कुछ दिमाग में बैठ गई और वो वहां जाके ड्रॉप करते आई मतलब। तो ये बेसिक एक सोशियोलॉजी की स्ट्रेटेजी है। सेकेंडली, इसमें मैं बताना चाहूंगा एग्जाम्पल सेम सोशियोलॉजी में भी आप ट्राई कीजिए कि एग्जाम्पल आपकी सॉरी खुद की लाइफ से हो तो बेटर है। और ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अपन सोसाइटी में रहते हैं, तो अपने से ज्यादा अच्छा सोसाइटी को कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। सो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा होगा, वो एग्जाम्पल में जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, उतना ज्यादा फायदा है। सेकेंडली, पेपर 1 और पेपर 2 को लिंक करना आई थिंक हर ऑप्शनल में जरूरी है, सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को लिंक करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज कि आप थिंकर्स को लिंक कर दीजिए। थिंकर्स ने जो बात करी है पेपर 1 में, आप उसको पेपर 2 में एज ए एग्जाम्पल ड्रॉप कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक इंडियन सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, फैमिली है, कास्ट है, क्लास है, देन कम्स जेंडर है। सो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो इवॉल्व हो रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप पेपर 1 और पेपर 2 को कनेक्ट कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की स्ट्रेटेजी में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे फिल्म्स के लिए कैंडिडेट आई थिंक जुड़े हुए हैं, फिल्म्स और मेंस के लिए। सो दीज आर सम बेसिक things which I did for sociology. Okay, now I will take some more questions which I generally come across uh, in a while. Okay. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मैंने आपको बताया तरीका,
इसकी डेली आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, कुछ चैनल मैंने बताया दृष्टि आईएएस और इनसाइट आईएएस उससे। ओके, और बुक लिस्ट, बेसिक बुक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी सारी कवर होती है। एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है बिकॉज एनसीईआरटी इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फॉर यूपीएससी आई बिलीव। ओके, सो आप उसको कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का मैं आपको तरीका एक बताना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो यूपीएससी आपको प्रोवाइड करा है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द मोस्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द यूपीएससी प्रिपरेशन आई बिलीव। सो उसको एनालाइज करने का तरीका ये है कि जनरली ऐसा होता है कि 30 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा जो है आपके नॉलेज बेस से आते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके नॉलेज बेस के बाहर आते हैं। सो टू कवर द अदर 30 क्वेश्चंस, बिकॉज इफ यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ, you at least have to score 100 these days, I believe. 100 is a good score. 100 is a safe score these days, from last 2 or 3 attempts, I believe. So उन उसको कवर करने का मैं तरीका आपको बताना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने का सिंपल तरीका है कि आप देखिए कि कौन सा, सबसे पहली चीज है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप एनालाइज कीजिए। सेकेंडली, आप देखिए कि एलिमिनेशन टेक्निक से या फिर कैलकुलेटेड गैस करके कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक जनरली होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नॉलेज बेस से बाहर होते हैं, बिकॉज बहुत ही एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, कहीं से भी यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन। इट इज नॉट बाउंड बाय एनी बेसिक बुक। पॉलिटी और इकोनॉमी में होता है थोड़ा बेसिक पोर्शन जो आप कवर कर लेते, उससे भी यूपीएससी भी बाउंड होता है क्योंकि ज्यादा कंटेंट इतना डायनेमिक नहीं है। लेकिन साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में कंटेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो उस चीज को जो है एलिमिनेशन और कैलकुलेटेड गेस से आप कर सकते हैं। एक बार आप बेसिक जो बुक्स मैंने जो बताई आपको, वो अगर रेफर करें, बेसिक एक चीज आप रेफर कर लेंगे, तो आई थिंक दीज 2 सब्जेक्ट्स कैन बी इजीली कवर्ड बाय एलिमिनेशन टेक्निक। एंड एक और चीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझनी है कि आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन सेफ है अटेम्प्ट करना। कुछ लोगों का होता है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और कुछ लोगों का होता है कि वो रिस्क लेने में अच्छे होते हैं। मैं रिस्क लेके करता था तो मार्जिन बन जाता था। मैं 90 क्वेश्चन करके आया हूँ दोनों प्रीलिम्स में। जीएस का कट ऑफ पहले में भी मेरा निकला था, सेकंड में पूरा निकल गया। तो जो है मार्जिन एक लेके चलना है। अगर आपका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप मार्जिन लेके चलिए। तो 90 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 85 to 90 क्वेश्चन अगर आप करते हैं जिसमें आपके 25 गलत हो जाते हैं, स्टिल यू कैन स्कोर अबव 100 एंड इट इज अ सेफ स्कोर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द मेंस। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिफर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड सेकेंडली, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप पूरे कवर कीजिए, बिकॉज उससे फर्स्टली होता है प्रैक्टिस होती है, सेकेंडली होता है आपको पता चलता है कि करंट पोर्शन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि जनरली जो टॉपिक्स है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो, ये ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली करंट से पूछते हैं यूपीएससी। सो आई थिंक कि इन टॉपिक्स को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ जनरल जो डाउट्स आते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैगजीन पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए एंड ऑल। सो न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता था, और न्यूज़पेपर पढ़ना आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपका स्टैटिक कवर नहीं हुआ है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। फर्स्ट यू हैव टू कवर द स्टैटिक पोर्शन, फर्स्ट यू हैव टू कवर द बेसिक बुक, द एनसीईआरटी, द लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड ऑल, देन ओनली यू कैन रिलेट एनी टॉपिक विच इज गिवन इन द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका यही है कि आपने स्टैटिक में जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई आपको अच्छी न्यूज़ दिख रही है तो वही पढ़ना है। एडिटोरियल आपको देखना है, जरूरी नहीं है कि सारे एडिटोरियल काम के हो। कभी कभी होता है हफ्ते भर एडिटोरियल आते ही नहीं ऐसे जो काम के हो। तो आपको जो आपने स्टैटिक पढ़ा है उससे कुछ रिलेट हो रहा है, करंट में कुछ बड़ा इवेंट हुआ है, उस पर कुछ एडिटोरियल आया है, तो वही आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आधे से 1 घंटे से ज्यादा तो आप डेली न्यूज़पेपर को देना ही नहीं है, अदरवाइज आपका जो स्टैटिक पढ़ने का टाइम है वो कम हो जाएगा। और डेली कितने घंटे पढ़ना है, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट की जो कैपेसिटी अलग होती है। कोई होते हैं जो 6 घंटा डेली पढ़ते हैं और उनका सब कवर हो जाता है, कोई होता है जो 15 घंटे पढ़ते हैं फिर भी कवर नहीं हो पाता है। मेरा बहुत डायनेमिक था, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 2 घंटे ही पढ़ता था, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 15 घंटे भी पढ़ा हूँ। सो आई थिंक ये
एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट को अच्छे से पता होगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने टाइम पढ़ने में कंफर्टेबल है। बट इन जनरल आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप 8 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए, बिकॉज प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है उसके बाद। सो 8 घंटे इज इनफ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो। और कुछ जो डाउट्स हैं, मीडियम बैरियर भी आजकल बहुत लोगों को लगता है कि मीडियम, आई थिंक मीडियम इज नॉट द बैरियर। यूपीएससी ने जब दिया है मीडियम तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के दिया होगा। एंड इवन दिस ईयर मेनी टॉपर्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। कोई से भी मीडियम लेके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ईयर लॉन्ग मेंस टेस्ट सीरीज मैंने तो नहीं ली थी। ईयर लॉन्ग मेंस टेस्ट सीरीज मैंने एक कारण से, इस कारण से नहीं ली थी कि आप ईयर लॉन्ग अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं तो प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले वो आप डेफिनेटली आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डेडिकेटेड प्रिपरेशन जरूरी होती है प्रीलिम्स के लिए। सो मुझे लगा कि वहाँ पे ईयर लॉन्ग जो टेस्ट सीरीज होगी वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगी मेरे को, इसलिए मैंने ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको डेली आंसर राइटिंग फ्री सोर्सेज से करने में प्रॉब्लम है, तभी आप ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज लीजिए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आंसर राइटिंग की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले तक। तो वो आप कोई से भी सोर्सेज से कर सकते हैं। फ्री सोर्सेज अगर अवेलेबल है, फ्री सोर्सेज से कर सकते हैं। पेड सोर्सेज है जैसे ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है, तो उससे करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। ट्रायम्फ आईएएस सोशियोलॉजी की मैंने कोचिंग करी थी, उसके अलावा मैंने पर्टिकुलरली कोचिंग कोई भी नहीं करी है। फ्री सोर्सेज ही जितने हो सके हैं वो यूज किए। मैं सबको कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में फ्री सोर्सेज आर वेरी मच, मतलब एक दो धारी तलवार भी है वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कंटेंट होता है जो काम का नहीं है लेकिन सोर्सेज से मिलता रहता है। So some authentic content which I think will definitely help you for UPSC is Mrinal sir's videos, Mrinal sir handouts, his free videos on Unacademy. These are the रामबाण for economy. इससे अच्छा कंटेंट मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली नहीं लगता कि इकोनॉमी कहीं मिल पाएगा। सेकेंडली, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अगर कोई फ्री सोर्स है तो स्लीपी क्लासेस इज द बेस्ट, आई थिंक, in my personal opinion. Otherwise, if you know some other source, it's not bad. Thirdly, only IS for GS is a good content. The editorial discussion of Sumit sir and the film booster news discussion जो है दिन का 1 घंटा मुश्किल से आपके ये दोनों चीजें लेंगी। अगर आप केवल सुनते भी हैं इसको तो आई थिंक इट इज वेरी गुड। उसके अलावा जो है there are many sources, मतलब inside IAS is good for some daily answer writing. This is as I mentioned, even Byju's has some good content, some, but ये है कि जितना लिमिट कर सकते हैं आप कंटेंट को उतना लिमिट कीजिए। सेकेंडली, एक कोटेशंस की, जैसे मैंने बताया, टारगेट आईएएस के आई थिंक कोटेशन की एक बुक आती है, बुकलेट आती है छोटी सी, जिसमें एटलीस्ट 100 to 150 जो है कोटेशंस और सेइंग्स दी हुई है लीडर्स की, वो अच्छी है। तो पर यही है कि आप फ्री कंटेंट को लिमिट कीजिए, ज्यादा मत पढ़िए उसको। फ्री कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो हौश पौश हो सकती है प्रिपरेशन। अगर स्टेटिक पे आप जितना स्टिक करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। बॉटम लाइन यही है। प्री के लिए नोट्स बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल बनाने चाहिए, क्योंकि रिवीजन में मदद मिलती है। डेफिनेटली यू शुड मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स, पर जितने ज्यादा कॉम्पैक्ट हो उतना अच्छा है। ज्यादा उसको डिटेल में ना रख के अपन कॉम्पैक्ट रखेंगे तो लास्ट टाइम रिवीजन आसान है। एक और चीज प्रीलिम्स के लिए मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा कि जनरली हर स्टूडेंट का ऐसा कोई सा सब्जेक्ट होता है जिसमें वो बहुत टाइम तक रिकॉल नहीं कर पाता है चीजें। जैसे मेरे साथ था कि एंशिएंट मिडाइवल जनरली जो पोर्शन था, और साइंस एंड टेक का भी कुछ हद तक जो है, मैं ज्यादा टाइम तक रिकॉल नहीं रख पाता था उस चीज को। तो मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स के 5 या 10 दिन पहले इसको एक्सटेंसिवली रिवीजन इसका चालू कर देता था, तो ताकि प्रीलिम्स के डे मुझे कुछ भी ऐसी चीज मेरे तरफ से ना हो जो मुझे रिकॉल ना हो। कुछ नया चीज वहां पूछा है तो उसके लिए तो एट द टाइम आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट आपकी तरफ से अगर तैयारी आपको पूरी रखनी है तो ऐसी चीजें जरूर कीजिए कि जो कंटेंट आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है, उसको प्रीलिम्स के जितना क्लोजली आप पढ़ सकते हैं उतना क्लोजली आप पढ़िए। स्पोर्ट करंट अफेयर आई थिंक वो 1 साल की बात थी, उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव दैट स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर पढ़ के आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का।
आप एक बार स्टैटिक पोर्शन अपना पूरा कवर कीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको चीजें समझ आने लगेंगी कि यहाँ ये टॉपिक वहां से कनेक्ट हो रहा है, ये टॉपिक इधर से कनेक्ट हो रहा है। और तो स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और आपका सब्जेक्ट यूपीएससी में अवेलेबल है, जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग था, वो अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज अनदर सब्जेक्ट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इंटरेस्ट, कि आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इंटरेस्ट जरूर है, होना चाहिए। सेकेंडली ऐसा है कि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग भी होना चाहिए। ट्रेंड देखिए यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट में सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट इसमें सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं, वो आप लेके बैठे हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और सेकेंडली कुछ सब्जेक्ट्स हैं बहुत फेमस सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर। तो इन सब्जेक्ट्स को, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इन सब्जेक्ट्स को बेसिक थोड़ा सा पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, और फिर आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं इजीली। आईपीएस ऑफिसर बनना है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको डालिए। जब आप वहाँ स्टेज तक पहुंचेंगे, आपके पास प्रेफरेंस रहेगा डालना। जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं वो आपको आपके रैंक के हिसाब से अलॉकेट होगा, जो भी सिस्टम। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, एंड यू विल get to know about it after you clear the mains. I think the main thing is to clear prelims and mains first of all. So that thing you must remember. 10 month preparation is enough for UPSC 2023. इट्स अप टू यू कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो पाता है कि नहीं उस 10 मंथ में, आपकी स्पीड कितनी है पढ़ने की। इट्स ऑल अप टू यू। कुछ कुछ तो मैंने केसेस सुने कि 6 मंथ में भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ, मेरे लिए 1 साल से कम में पॉसिबल नहीं था ये। सो अगर आपको लगता है कि 10 महीने में आप पूरा चीजें कवर कर सकते हो विथ आंसर राइटिंग, बिकॉज जो 3 महीने का समय प्रीलिम्स के बाद मिलता है मेंस के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपको कंटेंट के साथ स्पीड अपनी बढ़ानी है, क्योंकि द मेजर टास्क इज टू कंप्लीट द पेपर इन दोज 3 आवर्स। सो वो 3 महीने में स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है आपको। तो अगर आपकी इन 10 महीने में, फिल्म्स के पहले के 10 महीने में आंसर राइटिंग का कंटेंट अच्छे से कवर हो पाता है, तो आप उस कंटेंट को तैयार कीजिए। 10 महीने डेफिनेटली इनफ है। हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, कोई कितने भी टाइम में कर सकता है, सो इट्स नॉट मैटर ऑफ टाइम, बट एटलीस्ट हाँ, लगता है इतना 8 से 10 महीने का समय तो मिनिमम है ही, लगता ही है प्रिपरेशन के लिए। आई बिलीव दैट। Okay, how to cover a topic sufficiently to answer any type of question. You have to remember that 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 150 वर्ड के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन जो है वो 250 वर्ड के पूछे जाते हैं। तो एट एनी डे आफ्टर प्रीलिम्स आपके पास कोई से भी टॉपिक पे 150 से 200 शब्द का जो है कंटेंट तैयार होना चाहिए। तो अगर आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थॉरोली करी है और मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है, और जनरली जो टॉप मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, तो वो सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं एक्सटेंसिवली, मेजर जो बेसिक बुक्स हैं उससे, या फिर मैगजीन से, तो आई थिंक कि आपके पास उतना कंटेंट अवेलेबल होगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। कभी कभी होता है बाउंसर क्वेश्चन आते हैं, तो वो बाउंसर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए, वो सबके लिए, वो क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो आप अकेले नहीं हैं एग्जाम देने के लिए, आपके साथ जैसे इस साल 13,000 बच्चे और मेंस देंगे, तो उन 13,000 के लिए वो बाउंसर क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, एटलीस्ट 12,000 के लिए तो होगा ही होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी पूछता है जिसके आंसर जनरली रिकॉल नहीं होते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि बाकी जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो कवर कर लीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चन पे आइए, तो आपकी स्पीड इतनी बन जाती है कि आप जल्दी जल्दी कंटेंट जितना भी याद आ रहा है लिख सकते हैं। तो ये चीज है कि अगर टॉपिक को सफिशिएंटली आप पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दिया है वो एटलीस्ट, तो आई थिंक कि आप मेंस के हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशिएंट कंटेंट हो। प्रीलिम्स फेल हो गए उसके बाद, जैसे 2020 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स में निकला था, आंसर कीज से निकल रहा था, तो मैंने टेस्ट सीरीज लगा ली थी। जो लिस्ट आई उसमें रोल नंबर नहीं था। तो एक चीज आप ये कर सकते हैं कि जो प्रीलिम्स के बाद 3 या 4 महीने का समय होता है जो ओरिजिनल मेंस देने वाले हैं, तो जब तक आप ऐसे ही प्रिपरेशन मेंस की करिए, जीएस 1 2 3 को छोड़ के, ऑप्शनल के दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर और एथिक्स और ऐसे की तैयारी उन 3 या 4 महीने में इतनी अच्छी कर लीजिए कि जब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा अगले साल होपफुली, तो जब आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इन सब्जेक्ट्स को कवर करने की जरूरत नहीं पड़े। कोई सा भी आप कंटेंट ले सकते हैं जिसमें एक्सटेंसिवली पूरे जीएस 1 2 3 4 कवर हुए हों।
डजेंट मैटर कि वो कौन सी कोचिंग का है। जनरली आजकल देखा गया है कि हर कोचिंग के अच्छे, मैंने जैसे आपको प्रहार बताया है, प्रहार इज बहुत बढ़िया कंटेंट है प्रहार का, तो वो कंटेंट आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। बाकी जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, या फिर आपके एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि कौन सा कंटेंट काम का है, कौन से टॉपिक्स काम के हैं। तो उसके हिसाब से ही अपने जो कंटेंट पढ़ने का है वो बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी कंटेंट उठा के लिया पढ़ना चालू कर दिया। टॉपर्स की वीडियो से आपको पता चल जाएगा जनरली कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसी कंटेंट को पढ़िए जो जनरली रिकमेंड किया जाता है, जनरली विजिबल है, और जिसमें एटलीस्ट सिलेबस पूरा कवर है और बहुत ज्यादा इतर नहीं गया है। क्योंकि आपसे अच्छा कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीलिम्स और मेंस के। तो जब आप एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा चीज, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के लिए बताए थे, इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट। तो वो 3 एनालाइज करने के बाद ही मुझे समझ आया कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो जब आप ये सारे एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि ओनली आईएएस का कंटेंट प्रहार, आप वो रेफर कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, डेफिनेटली हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, बिकॉज हिंदी के आपको कोर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे पता होंगे हिंदी में, हिंदी साहित्य वगैरह से जुड़े हुए जो रहते हैं। तो हिंदी मीडियम इज नेवर अ बैरियर इन एनीवेयर, आई थिंक एनीवेयर इन लाइफ। एनसीईआरटी के नोट्स आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा जरूरत है बनाने की। एनसीईआरटी के नोट्स मतलब जनरली ऐसा होता है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बहुत इजी है। तो जब आप एनसीईआरटी ही 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मुझे इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी को जैसे मैंने बहुत बार रिवाइज किया, एनसीईआरटी को अगर मैं बताऊं पर्टिकुलरली हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको मैंने 10 से 15 बार रिवाइज किया होगा। तो वो ऐसी घुट जाती है कभी कभी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो एक कॉम्पैक्ट नोट्स उसके बना के, ताकि आप प्रीलिम्स के पहले उसको रिवाइज करें, कर सकते हैं। बट आई वुड एडवाइस कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादातर। नोट मेकिंग जनरली प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को। तो नोट मेकिंग का सबसे इजी तरीका है, अगर इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर 2023 नाउ, देन एटलीस्ट 2 या 3 महीने में आप इलेबोरेट नोट्स बना लीजिए, थोड़ा मेहनत करके, ज्यादा पढ़ के अभी के समय में। और फिर उसको धीरे धीरे कॉम्पैक्ट करना चालू कर दीजिए आप, मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से। और जब प्रीलिम्स हो जाएगी उसके बाद मेंस के नोट्स को कॉम्पैक्ट करना चालू कीजिए। जैसे मैंने प्रीलिम्स जब 2021 की खत्म हुई, उसके बाद मेंस के नोट्स को इतना कॉम्पैक्ट कर लिया कि एक कॉपी में जीएस 1 2 3 4 सारे नोट्स कवर हो गए। तो ताकि जब आपका 5 या 6 दिन बचते हैं, जब आप वो सारा कंटेंट रिवाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वहां पे आपको रिकॉल होना चाहिए चीजें। एग्जाम में अगर रिकॉल नहीं होगी तो आपने 10 साल पढ़ाओ, 1 साल पढ़ाओ, 1 महीना पढ़ाओ, एक दिन पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब होता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या। बट आई थिंक एक बार जब सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाता है तब आपको चीजें सारी रिकॉल होने लगती है। तो होल्ड ऑन फॉर अ बिट। जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होता ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या है। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था और मैं कुछ मॉक टेस्ट देने चले गया था, तो मेरा स्कोर इतना लो आता था, ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स में उन मॉक टेस्ट में स्कोर करता था 1 ईयर बिफोर 2020 अटेम्प्ट। सो वो इसीलिए क्योंकि सिलेबस ही कवर नहीं हुआ था। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं होगा तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि जनरली होता है कि यूपीएससी में टॉपिक्स भी इंटरलिंक होते हैं, सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हैं। तो जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाएगा तब तक जो है आपको चीजें अच्छे से समझ नहीं आने लगेंगी। तो सिलेबस कवर होने तक वेट कीजिए। खुद से कर रहे हैं या कोचिंग से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद आपको अपने आप चीजें जो है क्लियर दिखने लगेंगी। जनरली ऐसा होता है। इग्नू के नोट्स सोशियोलॉजी के लिए आप पूछ रहे हैं। इग्नू के कुछ ऐसा नहीं कि सारे नोट्स रेफर करना है। जैसे मैंने बताया कि जो थिंकर सिलेबस में नहीं है उसके अलावा जो थिंकर्स है 3 या 4, जैसे एस सी दुबे हो गया है, दीपांकर गुप्ता इज देयर, देन वीना दास इज देयर। तो इसके जो कंटेंट है वो इग्नू ने अच्छा दिया हुआ है बहुत। तो इन थिंकर्स को आप रेफर कर सकते हैं। और कम लिखिए, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कम लिखिए। और कुछ टॉपिक्स है जैसे सोशल मूवमेंट से बहुत अच्छे से कवर किया है इग्नू ने, तो इन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। वन मोर टॉपिक इज देयर, सोशल चेंज इन इंडिया।
तो ये 3 चीज़ें मैंने इग्नू से रेफ़र की थी, तो आप भी ये रेफ़र डेफ़िनेटली कर सकते हैं। इकोनॉमिक एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की एनसीईआरटी अच्छी है, उसमें कंटेंट अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपने कहीं और से नहीं किया है, लाइक रमेश सिंह से नहीं आपने पढ़ा है या फिर मृणाल सर के नोट से नहीं पढ़ा है, तब आप उसको, लेकिन एक बार आपको अगर आपने पढ़ लिया है उन नोट से, तो आई डोंट थिंक दैट एनसीईआरटी वुड ऐड दैट मच टू योर कंटेंट। सो अगर नहीं पढ़ा है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि उससे रहने दीजिए उसको। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने जनरली जो बुक प्रेफर की जाती है, नितिन सिंघानिया नहीं प्रेफर की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, वो रिफर करी। सेकेंडली इनसाइट आईएएस का एक मॉड्यूल थे कुछ, जो इंडियन डांसेस, इंडियन लिटरेचर, इससे रिलेटेड फ्री कंटेंट अवेलेबल था उनकी वेबसाइट पे, उसको मैंने रिफर किया। और जो मॉक टेस्ट अपन देते हैं प्रीलिम्स के, मॉक टेस्ट, या आई टॉक अबाउट मॉक टेस्ट अ लिटिल बिट मोर। जो मॉक टेस्ट होता है, मैं ये जनरली सजेस्ट करना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट आप प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले दीजिए। सेक्शनल दीजिए 10 के आसपास और फुल लेंथ दीजिए 20 के आसपास, और उसमें से ऐसा कंटेंट निकालिए जो आपको बेसिक बुक में नहीं मिला हो और जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। जैसे ये डांसेस हो गए, तो जनरली मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट का डांस से मैच करना होता है, तो वहां से आप स्टेट के डांसेस ये लिख लीजिए। कभी हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पहले पूछ चुका है, तो इस टाइप का कंटेंट मॉक टेस्ट से आप ले सकते हैं। और जनरली मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से देखा है कि मॉक टेस्ट में 100 में से 30 क्वेश्चन काम के होते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा काम के नहीं होते हैं। तो वो वही क्वेश्चन होते हैं जो आपने स्टैटिक में कवर किया होगा और आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ, ये स्टैटिक में कवर किया है, ये इन्होंने पूछा है, दिस पार्ट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। तो उस पार्ट को ही आप देखिए, बाकी जो 70 क्वेश्चन है उसके बाद पढ़ लीजिए अगर समय हो, अगर नहीं हो तो नहीं पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। उन पे आपको टाइम खपाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस, उससे दो चीज की प्रैक्टिस होती है कि 2 घंटे में आपका प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट हो जाए। सेकेंडली आपको पेपर सॉल्व करना आ जाए कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगती है, या फिर कैलकुलेटेड गैस कैसे लगता है। और जो है, मैंने 2020 अटेम्प्ट के लिए विजन आईएएस के मॉक टेस्ट लिए थे। 2021 में मुझे विजन आईएएस के मॉक टेस्ट इतने ज्यादा अप टू द मार्क नहीं लगे, तो मैंने फोरम आईएएस और नेक्स्ट आईएएस के जो मॉक टेस्ट है, इवन राउज आईएएस के, वो कवर किए थे। इट वाज गुड। स्टैटिक पोर्शन अच्छे से वो कवर करते हैं, तो स्टैटिक का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है उन मॉक टेस्ट से। आर्ट एंड कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट के लिए क्या सोर्सेस? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई से भी कोचिंग की बुकलेट मिल जाएगी। कंटेंट फिक्स्ड है, 60 से 70 पेज की बुकलेट आएगी, उससे ज्यादा बाहर यूपीएससी पूछता नहीं है, उसको कवर कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं। साइंस एंड टेक के लिए आई रिफर्ड उड़ान ओनली आईएएस, इट्स द बेस्ट कंटेंट आई हैव केम अक्रॉस। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस इज वेरी गुड। पीएमएफ आईएएस मैंने रेफर की थी, इट्स आल्सो वेरी इजी लैंग्वेज, रिटन इन वेरी इजी लैंग्वेज, सो पीएमएफ आईएएस आप रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्ट आप जाएंगे, समझ नहीं आएगा, कोई इशू मतलब नहीं रह जाएगा उसका। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। बेसिक जब तक आप स्टैटिक पोर्शन कवर नहीं करते हैं, जब तक आपको यूपीएससी से रिलेटेड चीजें ज्यादा समझ नहीं आएंगी। सो आई बिलीव कि आप सबसे पहले बेसिक जो पोर्शन है वो कवर कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए। लक्ष्मीकांत में चैप्टर बहुत हैं, जीएस स्कोर में देखा सिलेबस 27 चैप्टर, वही इंपॉर्टेंट है ना सर? लक्ष्मीकांत भी पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेटली, पर कुछ जो बेसिक चैप्टर्स हैं उसके, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं लक्ष्मीकांत की। जिसको आपको मतलब मुंह जबानी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आर्टिकल्स आपको यूपीएससी में याद नहीं रखने पड़ते हैं डेफिनेटली। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो लक्ष्मीकांत की सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा रीडिंग जरूर कीजिए उसकी, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है कुछ, क्योंकि मेंस में काम आता है। गवर्नेंस वाला पोर्शन है जो पीछे पीछे दिया होता है, तो वो पोर्शन इम्पोर्टेंट है को लक्ष्मीकांत का। ओके। इकोनॉमी मृणाल सर के वीडियो देख रहा हूँ, मृणाल सर के नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि हैं। 2010 के इकोनॉमिक सर्वे, नहीं नहीं, बिल्कुल 2010 तक का इकोनॉमिक सर्वे या वगैरह वो इम्पोर्टेंट डेफिनेटली नहीं है। 1 या 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट रहता है। और मृणाल सर के जो एक बार आप नोट्स जैसे रिफर करते हैं, जैसे 2021 के किए या 2020 के किए, तो
उसके बाद जो अनअकैडमी पे फ्री सीरीज उनकी चलती है, उससे आप एड ऑन करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि सारा ही कंटेंट आपको लिखना है। सर खुद बोलते हैं अपनी वीडियोस में कि सारा कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कि पूछा गया है और अ, मतलब करंट में था इसलिए वो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें, तो वो सर खुद बता देते हैं वीडियोस में कि कौन सा कंटेंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। लेकिन एक बेसिक जो उनके हैंड आउट है उसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। और जब आप सिलेबस देखेंगे मेंस का, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको समझ आ जाएगा कौन सा कंटेंट इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग इफेक्टिवली करने के लिए आई थिंक डेली आंसर राइटिंग इज द मस्ट थिंग यू शुड डू। आई ऑल्सो डिड दैट। डेली आंसर राइटिंग से आपका कंटेंट एनरिच होगा। उसके बाद जब प्रीलिम्स आपकी क्लियर होगी उसके बाद आप एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं भी लेंगे तो इट वोंट मेक मैनी मच डिफरेंस। यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली ताकि आपकी टाइम और स्पीड जो है वो मैच हो जाए और 3 घंटे में आपका पेपर कवर हो पाए। एक और चीज़ है आंसर राइटिंग इफेक्टिवली करने के लिए, आप टॉपर्स की कॉपी रेफर कीजिए। उसमें आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे कंटेंट। जैसे एक चीज़ मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन अंडरलाइन आंसर में अंडरलाइनिंग करता था, पर मैंने एक टॉपर की कॉपी देखी जिन्होंने बॉक्स बनाया था। तो बॉक्स बना के जब मैंने देखा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। वो जो हाईलाइट करना चाहता था अच्छे से दिखा, तो वो उसके साथ मैंने फिर प्रैक्टिस करी। तो आई थिंक दैट एड ऑन टू माई मार्क्स इन सम वे, because in test series also with underlining I wasn't getting that much marks which I got from making the box. So these kind of things also you can get from the toppers copies. NCERT is becoming difficult. I don't see how NCERT is difficult for you because it is very easy, written in very easy language. Just start with the class 6 NCERT, and I think it is the most easiest language any book is written in. So I think you can refer the NCERT very easily. Don't take load of NCERT. एनसीईआरटी और ऑनलाइन क्लास से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सिलेबस आप देखिए सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, और वो सिलेबस की चीज़ें अगर एनसीईआरटी और ऑनलाइन क्लास से आपको दिख रही है कवर होती हुई, तो उससे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इट्स वेरी इजी थिंग। यू हैव टू रिफर द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस आपके सामने लगा होना चाहिए पूरे टाइम, और आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल mug up the syllabus of optional of GS, and then see that that syllabus can be covered from the sources which I am referring or not. GS papers are generally very generic, and in recent years, from past 2 or 3 years, generally seen that GS में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है। अगर आप टॉप 10 के मार्क्स हटा दो उसमें से, तो सो देयर इज नॉट एनी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप एज ले सकते हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेटली है जहाँ पे आपको एक एज मिल सकती है अगर आप PSIR से हैं, और अगर आप सोशियोलॉजी से हैं तो आपको सोसाइटी वाले पोर्शन में एक एज मिल सकती है। हिस्ट्री से तो हिस्ट्री सेम ऑप्शनल जो आपका है उसके ही आपको एज मिल सकती है GS 1 और 2 में। आई डोंट थिंक एनी अदर ऑप्शन जहाँ से आपको एज मिल सकती है GS 1 और 2 के पेपर्स में। 1 year करंट अफेयर इज इनफ और नॉट? करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। करंट अफेयर पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। करंट अफेयर इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग इफ यू गो डीप इनटू दैट। आप रोज एक कोई सी वीडियो देख लीजिए करंट अफेयर्स की, उसको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत है। करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने में रामबाण एक चीज है, इसको हमेशा याद रखिए। करंट अफेयर के नोट्स कभी नहीं बनाने आपको, बिकॉज स्टेटिक अगर आपका स्टेटिक कवर नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकल सकती, और स्टेटिक अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो बहुत इजीली एग्जाम निकल सकती है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन करंट अफेयर्स। 6 और 7 में कुछ अलग कंटेंट दिया हुआ है। साइड में बॉक्स बने होते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट दिया हुआ है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक श्रमणा पूछा था यूपीएससी ने कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। दैट वाज गिवन इन द 7th क्लास और 6th क्लास एनसीईआरटी आई बिलीव। सो ऐसे कंटेंट जो है वो 6th और 7th क्लास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए वो पढ़ना जरूरी है आई बिलीव दैट। प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में होती है। आई डोंट थिंक कि ये एक्सक्लूसिव है दोनों एक दूसरे से। तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन आप एक साथ ही उसको लेके चलिए, और दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि प्री क्लियर करने के बाद मुझे मेंस देनी है,
और जिस दिन प्री क्लियर होती है उस दिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि 70% आपका मेंस का कंटेंट जो है वो तैयार हो। तो इस बात को अगर आप लेके चलेंगे शुरू से, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू कवर, वेरी इजी टू क्लियर दिस एग्जाम ऑल्सो। इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, if possible try to prepare in Hindi medium only, because medium change is very difficult thing. I have seen many aspirants changing the medium and not able to cope up with the other medium which they have decided. So if possible, do the preparation in Hindi medium, because content is very extensively available these days. So I think medium आप refer कर सकते हैं कोई सा भी। Okay, we'll wait for another 2 or 3 minutes. After that, we'll end this session, because most of the questions I have covered, and some more point I will like to add at the end. Okay. Okay. So one thing that I would like to add personally is that two things you have to remember during your preparation. Is first is consistency, second is honesty. Consistency with the content and the intent, both. बिकॉज अगर आपको 1 या 2 साल में एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपका इंटेंट पूरे टाइम यही होना चाहिए कि मुझे यही एग्जाम क्लियर करना है। और आई थिंक इफ यू कम फ्रॉम अ नॉर्मल बैकग्राउंड, you can dedicate 1 or 2 year for this exam, exclusively for this exam, and not go for any other exam like state PSC or SSC or something. So that comes consistency with the intent. And second, consistency with the content is that you, अगर आप 1 घंटा, एक आधा घंटा भी डेली पढ़ रहे हो, मतलब कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपको समय नहीं मिलता है पढ़ने का, आपको छोड़ना नहीं है, बहुत लंबा गैप नहीं लेना है। अगर आप गैप लेना भी चाहते हो तो एटलीस्ट उसको सीमित रखिए 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते से ज्यादा का आप गैप लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। सो आई थिंक ये होता है कंसिस्टेंसी विद द कंटेंट, कि आप ऐसा कोई सा समय नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। एटलीस्ट 1 साल की होती है प्रिपरेशन ये, और उसके बाद जो एग्जाम है वो 6 या 7 महीने का पूरा फेज रहता है। तो उस दौरान ऐसा कोई फेज नहीं आना चाहिए जब आपको कंटेंट याद नहीं हो कुछ। सो दिस इज द थिंग विद द कंसिस्टेंसी। सेकेंड इज ऑनेस्टी। आप दुनिया को झूठ बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। कुछ होते हैं ऐसे जो आपको परेशान करते हैं, तो उनसे झूठ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यू शुड नो दैट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स में कितना स्कोर आ रहा है, वो खुद से झूठ मत बोलिए। आपका मेंस आंसर राइटिंग कितनी क्या तैयार है, खुद से झूठ मत बोलिए। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन कितना अच्छा है या कितना बुरा है, उससे खुद से झूठ कभी मत बोलिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर ये दो चीज आई थिंक आप ध्यान रखेंगे, so it would be very beneficial for you throughout the preparation, and I think you can easily crack this exam. uh, and all the best to every aspirant, and I would like to thank UPSC time for giving me the honor to connect with many aspirants.